In database connectivity, today's topic is executing MySQL commands using Python. See, first topic, how to create a database using Python in MySQL. You already know the command in MySQL is create database and database name. Let us see how can we create a database using Python script or Python program. So here we have two MySQL screenshots. As you can see here, before running this program and after running this program. So in this before situation, I have given commands show databases. So there is a list of databases in my laptop, information schema, MySQL, school, and test. Now the question is create a database company. As here it is written, creating a database company. So let us see lines one by one. These two lines are to import libraries essential for database connectivity. Then mycon is equal to sqltor.connect. This method is used to create a connection between Python and MySQL. तभी हम Python के through MySQL को use कर पाएंगे. So we have host is equal to localhost, user is equal to root, password vdjs, and database is equal to school. It means inside this school database, we are going to do some connectivity. It is not necessary to write database is equal to school here because we are going to create another database that is called company. Well, let us see. If mycon dot is connected colon, then do some processing as print connectivity problem. यानी अगर आप कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वाला मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा क्योंकि इज कनेक्टेड फॉल्स हो जाएगा. So main lines are my cursor is equal to mycon dot cursor. This is a new statement. अभी बताएंगे इसके बारे में. mycon dot cursor. Then write a query. So query will be create database company semicolon. My cursor dot execute query. So these two statements are new for you. और ये हमेशा आगे काम आएंगे. आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इन्हीं के थ्रू सब काम होंगे. So mycon dot cursor function is used to create a cursor method which interacts with MySQL server to execute queries. For execution of the query, we use myCursor name along with the execute function. फिर से देखिए myCursor is equal to mycon dot cursor लिखा है तो इससे myCursor नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसके थ्रू आप क्वेरीज को रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं. यू हैव टू राइट myCursor dot execute, फिर ब्रैकेट में जो भी क्वेरी आपको देनी तो ऑटोमेटिकली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी. प्रिंट डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया. सो व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम you will see only this output, database created successfully. अब database create हुआ या नहीं ये चेक करने के लिए या तो आप Python में प्रोग्राम बनाओ या फिर MySQL में ओपन करके देख लो. तो for this program there is a screenshot
आफ्टर, अब आप देखिए प्रोग्राम रन कराने के बाद डेटाबेस की लिस्ट में दोबारा से जब कमांड दिया शो डेटाबेसेस, कंपनी नाम आ चुका है। इट मीन्स कंपनी डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड। क्लियर? तो एक चीज आप और नोटिस करना, डेटाबेस इज इक्वल टू स्कूल लिखने से कंपनी डेटाबेस कहाँ बनेगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए बोला था अगर आप डेटाबेस इज इक्वल टू स्कूल इस केस में नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। नाउ इन फर्दर प्रोग्राम्स वी विल यूज दिस डेटाबेस, तो हम कंपनी डेटाबेस में ही अब आगे सारा काम करेंगे। नेक्स्ट, सो सेकंड टॉपिक इज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ डेटाबेस। मैंने अभी आपको बताया था अगर आपको चेक करना है या तो पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आप चेक करिए कि डेटाबेस की लिस्ट में आपका डेटाबेस बना कि नहीं, या फिर MySQL में जाकर के चेक कर लीजिए। बट हियर आवर टॉपिक इज टू रन द कमांड्स यूजिंग पाइथन। MySQL में तो काम हो ही रहा था, पाइथन के थ्रू कैसे करेंगे ये सीखना। ओके, लेट अस सी दिस कोड। import pandas as pd, import mysql.connector as sql mycon, एक कनेक्शन तैयार किया। so these are four same lines. Now see this code, my cursor is equal to mycon.cursor. see, as you already know what is a cursor, suppose आप इमेजिन करो MS Excel में काम कर रहे हो, there is a table, उसमें रोल नंबर नेम मार्क्स लिखे हुए हैं, तो आप माउस के पॉइंटर को यूज करके माउस का कर्सर ऊपर नीचे एरोज के थ्रू लेके जा सकते हैं ना। इट मींस कर्सर इज समथिंग, कर्सर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच पॉइंट्स टू करंट लोकेशन, वो ये बताता है कि हम कहाँ पर हैं। तो MySQL में काम करने के लिए भी हमारे पास एक कर्सर होना चाहिए, इसीलिए इस लाइन की जरूरत पड़ती है। तो हमने mycon.cursor फंक्शन यूज करके एक ऑब्जेक्ट तैयार किया जिसका नाम है myCursor, जिसके थ्रू हम क्वेरीज को रन कराएंगे, इसके बिना क्वेरीज रन नहीं हो पाती। ओके, माई कर्सर इज इक्वल टू mycon डॉट कर्सर, फिर एक क्वेरी आपने बनाई शो डेटाबेसेस, माई कर्सर के थ्रू उसको रन कराया, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, प्रिंट सी प्रिंट लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस इन MySQL, ये हेडिंग आ जाएगी। फॉर एक्स इन माई कर्सर, सी दिस कोड, फॉर एक्स एक वेरिएबल लिया, यू नो फॉर इज अ लूप इन माई कर्सर, प्रिंट एक्स, माई कर्सर ऑब्जेक्ट में ओके, तो जो माई कर्सर है ये आपके कर्सर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस कर्सर ऑब्जेक्ट में जो भी एक्स की वैल्यू है वो हम प्रिंट कराने जा रहे हैं। तो आपके जो डेटाबेस की लिस्ट है वो स्क्रीन पर आ जाएगी। सी दिस आउटपुट, लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस इन MySQL, इंफॉर्मेशन स्कीमा, कंपनी, देखिए यहाँ पर आ गया कंपनी का नाम, MySQL, स्कूल, टेस्ट, ये सारे डेटाबेसेस हैं। तो पाइथन में MySQL का आउटपुट आ गया। तो ये है डेटाबेस कनेक्टिविटी का रिजल्ट। So see this blue box. For loop has been used to traverse among all the databases present inside MySQL
यूजिंग द कर्सर ऑब्जेक्ट माई कर्सर। जरूरी नहीं कि आप माई कर्सर ही लिखो, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, CUR दे सकते हैं, यू कैन राइट सिंपली C1 C2 whatever. Next, to create a table department in MySQL using Python script mode as the interface. Do not get confused. अभी हम यही सारा काम कर रहे हैं. What are we doing actually? We are running MySQL commands using Python. तो पूरा ऐसे बोलते हैं, using Python script mode as the interface. यानी प्रोग्रामर के लिए जो इंटरफेस है, जिस पर वो काम करेगा, जिसको देख के वो काम करेगा, वो है पाइथन, जहां पर स्क्रिप्टिंग की जाती है, यानी कि कोडिंग लिखी जाती है. So how to create a table? You know, create table, टेबल नेम और फिर फील्ड के नाम दे दो. पाइथन में कैसे लिखते हैं? लेट अस सी हियर. import patterns as pd, import mysql.connector as sql mycon, if mycon, वही सेम लाइंस है. देयर इज अ चेंज हियर. डेटाबेस इस बार हम कंपनी लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है. अगर आपने डेटाबेस स्कूल ही रखा तो क्या होगा, ये जो टेबल बनेगी वो स्कूल में बनेगी, फिर आप कंपनी में जाकर के शो टेबल्स करेंगे, आपको दिखाई नहीं देगा. सो बी केयरफुल, जहां पर आप काम कर रहे हैं वो डेटाबेस का नाम चेक करना है हर बार. सो डेटाबेस इज इक्वल टू कंपनी. जो डेटाबेस अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी बनाया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 से चला रहा है, 1 2 3. थर्ड में हम टेबल बनाना सीख रहे हैं. if mycon dot is connected, my cursor is equal to mycon dot cursor query. Create table department space small brackets department number in 3 primary key not null comma. अब अगर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो बैकस्लैश लगा दिया जाता है ताकि कंटिन्यूटी में ये लाइन आ जाए, अदरवाइज फिर ये नेक्स्ट लाइन जो है वो अलग स्टेटमेंट बन करके एरर शो करेगी. डीनेम where 20 comma number of employees in 3. I am going to create a table department in which there are columns dpt number, dname and number of employees. Then execute this query. Query आपने string की फॉर्म में लिख दी, अब उसको रन कराइए. my cursor dot execute query. फिर एक आउटपुट डिस्प्ले कर दिया, टेबल क्रिएटेड. यहाँ देखिए जब इसको रन कराया टेबल क्रिएटेड स्क्रीन पर आ चुका है. Now if you want to check whether this table has been created or not, तो आप क्या करोगे, शो टेबल्स नाम का कमांड दोगे. लेट अस सी हियर. MySQL में गए, शो टेबल्स नाम का कमांड दिया. सी इन दिस येलो सर्कल यू कैन सी टेबल dpt नाम आ गया इधर. इट शोज दैट टेबल हैज बीन क्रिएटेड इन MySQL. तो देखो ये पाइथन है आपका व्हाइट बॉक्स, और ये ब्लैक जो है ये MySQL है. पाइथन के थ्रू MySQL को हम एक्सेस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Now to display a list of tables in MySQL using Python script mode as the interface. यानी पाइथन के थ्रू अब हमें कमांड क्या देना है, शो टेबल्स. See in all other topics or questions, all these lines will be same. First 4 lines and last else line. There will be a change only in query. See, तो मैं फिर सारी लाइंस बार बार डिस्कस नहीं करूंगा. वी विल डिस्कस ट्रू ब्लॉक ओनली. ये आपका ट्रू ब्लॉक है फॉर का, फॉर तक. देखिए माई कर्सर इज इक्वल टू mycon डॉट कर्सर क्वेरी इज इक्वल टू शो टेबल्स सेमीकोलन. माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, आपकी क्वेरी रन हो जाएगी. प्रिंट लिस्ट ऑफ टेबल्स,
क्वेरी रन हो गई। अब आपको क्या चाहिए, स्क्रीन पर टेबल्स की लिस्ट भी तो चाहिए। तो यू हैव टू राइट फॉर एक्स इन माई कर्सर प्रिंट एक्स, सीधा आउटपुट। एक ही टेबल का नाम था तो इसलिए एक ही आया, डिपार्टमेंट। दिस इज द आउटपुट ऑफ पाइथन, नॉट MySQL. Next, to add a new column, department code of char2 type in department table using Python script. It means we are going to learn how to use alter command through Python. So see this code. यहाँ देखिए इधर, my cursor is equal to mycon dot cursor query is equal to alter table query, sorry, alter table department, add dpt code char 2 semicolon, then curly braces close. My cursor dot execute query, print new column added successfully. ये आपने प्रिंट कर दिया। क्या एक्चुअली ये काम करेगा? रन करा के देखोगे तो जो प्रिंट में है वो तो ऑब्वियसली डिस्प्ले करा ही देगा। स्टिल वी हैव डाउट कि एक्चुअली MySQL के अंदर टेबल में चेंजेस हुए कि नहीं। सो व्हाट कैन वी डू? हाउ टू चेक whether changes has been taken place or not? For that we can show structure of this table. स्ट्रक्चर कैसे डिस्प्ले कराते हैं? डिस्क्राइब स्ट्रक्चर। लेट अस सी। So next is to view the modified structure of department table in MySQL using this Python. See the code, just focus करना। My cursor is equal to mycon dot cursor query is equal to describe department. You know DESC is used to display structure of a table. अब यहाँ मैंने इसको कमेंट बना रखा है because I want to show you something else also. My cursor dot execute, यहाँ देखिए तो describe department semicolon। जो क्वेरी है वो मैंने एग्जीक्यूट के अंदर ही दे दी। आई हैव नॉट यूज दिस क्वेरी वर्ड हियर। इसका मतलब हम क्वेरी को डायरेक्टली एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर छोटी क्वेरी है, छोटे छोटे कमांड्स हैं, तो आप एग्जीक्यूट के अंदर डायरेक्टली इसको लिख दो। अगर कोई बड़ी क्वेरी है, फॉर एग्जांपल ऑल्टर टेबल जो पीछे देखा था, उसके लिए आप एक क्वेरी स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स। ओके, प्रिंट डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर फॉर z। यहाँ नॉर्मली हम x लेते हैं, इस बार z ले लिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। फॉर z इन माई कर्सर कॉलन प्रिंट z, सीधा आउटपुट। ये डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर तो इस लाइन की वजह से आया। आप प्रिंट में डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा। सो डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर आ गया। डिपार्टमेंट नंबर int 3, नो प्राइमरी की, नन, डीनेम varchar 20, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट कोड। आपने ऑल्टर टेबल से डिपार्टमेंट कोड को ऐड किया था ना, आ गया यहाँ पर डिपार्टमेंट कोड। पहले 3 कॉलम थे, अब 4 हो गए। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक चेंजेस यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक 7, टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड, जिसको हम टपल भी बोलते हैं, इन डिपार्टमेंट टेबल।
अब हमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. हाउ कैन वी डू इट? यूजिंग पाइथन. वैसे कमांड आपको मालूम है. MySQL में तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज एंड व्हाटएवर वैल्यूज यू वांट टू गिव यू कैन गिव. सी हियर दिस लाइन. अब क्वेरी नाम के वेरिएबल में क्वेरी स्टेटमेंट अलग से मैंने तैयार किया है. फिर क्वेरी को हम यहाँ यूज करेंगे. डायरेक्टली भी आप यहाँ लिख सकते हो. ठीक. इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज 101 अकाउंट्स 50 D1. 101 डिपार्टमेंट नंबर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट नेम, 50 किसकी वैल्यू थी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एंड D1 वाज योर डिपार्टमेंट कोड. इसको ऑल्टर टेबल कमांड से हमने ऐड किया था अभी पीछे. सो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, इस लाइन से क्वेरी रन हो जाएगी आपकी. प्रिंट माई कर्सर डॉट रो काउंट. दिस रो काउंट कीवर्ड इज used to return the number of records inserted. यहाँ देखिए, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो यहाँ नंबर 1 आ जाएगा. इसका आउटपुट सी दिस आउटपुट 1 आ गया. नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड 1 और रिकॉर्ड इंसर्टेड इसके आगे डिस्प्ले हो जाएगा 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड. ओके नेक्स्ट. नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं. व्हेन यू विल क्रिएट योर प्रोजेक्ट you need to insert more than one records. 8-10 रिकॉर्ड तो आप इंसर्ट करोगे ना सैंपल डेटा के लिए, ताकि उस पर आप काम कर सको और एग्जामिनर को भी दिखा सको कि हाँ भाई एक्चुअली ये काम हो रहा है. जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रोग्राम्स मैंने रन कराए हैं, एक्चुअली रन कराए हैं. फिर जो आउटपुट आया था उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करी है. सो ऑल दीज आर प्रूफ्स. तो जो हम काम करते हैं उन्हीं के प्रिंट आउट निकाल करके लगाते हैं. यहाँ तो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है. फिजिकल कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी जब आपको तैयार करनी होती है पेपर पर, तो वहाँ पे तो प्रिंट आउट ही चलते हैं. सो दिस इज इन इटसेल्फ अ प्रूफ. स्टिल समटाइम्स एक्सटर्नल एग्जामिनर आस्क यू टू रन दैट प्रोग्राम इन कंप्यूटर. वो आपसे पूछता है कि भाई इस प्रोग्राम को रन करके दिखाइए. कहीं आपने किसी और से लेकर के चीटिंग तो नहीं करनी. तो डेटा एक्चुअली स्टोर होना चाहिए, एक्चुअली रन होना चाहिए. लेट अस सी दिस प्रोग्राम. यहाँ देखिए my cursor is equal to my count dot cursor, my cursor dot execute. अब यहाँ पर मैंने क्वेरी नहीं ली. क्वेरी नाम का जो स्टेटमेंट बनाया था हर बार वो नहीं बनाया, बिकॉज वी नीड मल्टीपल वैल्यूज. 3 रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करने हैं. या फिर मैं लिखता क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी 3, तो बेटर मुझे लगा ये कोड है, तो इसीलिए डायरेक्टली लिख दिया. इट मींस दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स to be used. My cursor dot execute insert into department values 101 accounts 5 D1 insert into department values 102 103. Then जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे आप डिस्प्ले करा दीजिए रिकॉर्ड सेव. आपका रिकॉर्ड सेव लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पर. पर अभी आपको दिखेगा नहीं कि रिकॉर्ड सेव हो गया. इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए MySQL में जाकर के या तो select restrict from department लिखेंगे. फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर select restrict from department. देखिए आपका डेटा आ गया. ऑल डेटा इज देयर. अकाउंट, सेल्स, मार्केटिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट कोड D1 D2 D3. या फिर आप इस क्वेरी को भी select restrict from department, इसको भी आप पाइथन के थ्रू रन कराएंगे. So it means in future when you will create your project, you will not use commands in MySQL.
MySQL में तो सिर्फ शुरू में एक बार टेबल बन जाती है, आप सारी प्रोग्रामिंग सारी कोडिंग पाइथन में ही करेंगे, सब कुछ जो काम आपको करना है पाइथन में करना है। ऐसे करके ये प्रोग्राम बड़े होते चले जाते हैं। वो एक ही प्रोग्राम कहलाता है, दैट इज अ प्रोजेक्ट। एक ही प्रोग्राम में आपको ये सारे काम करने होंगे इन फ्यूचर। तो अभी तो जो कि शुरुआत है, फॉर सिंपलिसिटी आई हैव डिवाइडेड ऑल दीज सेपरेटली, अलग अलग रन करा करके देख रहे हैं। तो आप भी ऐसे अलग अलग इनको रन करा करके देखिए। सी हियर लास्ट लाइन of true block, mycon dot commit. This commit saves the transactions permanently. हमने अभी क्या ट्रांजेक्शन किए, 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, उनको परमानेंटली सेव करता है कमिट स्टेटमेंट, और आपका ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट, to display all records in a department table. How to display all records? Select asterisk from department. वो कमांड यहाँ पे दे दिया, सी दिस लाइन, my cursor dot execute select asterisk from department। फिर क्योंकि आउटपुट में बहुत सारी लाइंस आएंगी, लगा दिया फॉर लूप, my records is equal to my cursor dot fetch all। this is a new statement, fetch all, to fetch something, retrieve करना, fetch करना, लेके आना, to fetch a pail of water, है ना, बाल्टी पानी की भर करके लेके आओ, fetch all the records। और भी होते हैं कई सारे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो fetch all लिखना यहाँ कंपलसरी है। it fetches all the rows in a result set। जो भी रिजल्ट सेट आपका तैयार होगा, फॉर एग्जांपल 4 रिकॉर्ड हैं, तो 4 रिकॉर्ड का एक रिजल्ट सेट तैयार हो गया, उन रिजल्ट सेट्स को माय रिकॉर्ड्स नाम का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। देन राइट दिस लूप फॉर x इन माय रिकॉर्ड्स, प्रिंट x। तो एक एक करके रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएंगे, सी दिस आउटपुट, रिकॉर्ड नंबर 1 101, रिकॉर्ड नंबर 2 102 एंड 103। तो ऐसे पाइथन के थ्रू आप डेटा पाइथन में ही डिस्प्ले भी करा सकते हैं। लास्ट, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। ये हमने पहले भी देखा था, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट यूज कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंस है। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर, एक कंडीशन लगा दी, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 102। वेरी सिंपल, बाकी सब सेम। तो 102 मैच होगा, उसी का टपल आपके सामने आ जाएगा। टपल मीन्स रिकॉर्ड, 102 सेल्स 40 डी। यही मैंने कमांड यहाँ दिया MySQL में, देखिए सेम आउटपुट आएगा। जस्ट टू कंफर्म, 102 सेल्स 40 डी। So that's all today. Thank you.